नमस्कार। अब मैं आपको पाकिस्तान की मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के बारे में अवगत कराऊंगी। पहला, पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, उसका यह भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड, जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, बठिंडा, नलिया और भुज में है, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्यूनिशन डंप्स जो चंडीगढ़ और बियास में है, उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। हमने आपको मॉर्निंग ब्रीफिंग में बताया था विद फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही सलामत हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई थी कि उनके सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स, जो कि पूरी तरह से ये भ्रामक है और तथ्यों से दूर है, कि पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं कि इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की एक बहुत प्यारी झलक है। इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड्स स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनडिनेबल किया। यह भी बताना चाहती हूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल, लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री पर्सनल का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। अंत में मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूंगी, इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। धन्यवाद। जय हिंद। Several attempts were made by Pakistan on spreading a misinformation campaign, as we have seen for the last few days. There were attempts made to say that our S-400 at a northern base was destroyed, which was completely false, and that it was destroyed by a JF-17, it was a false information. Also, that the BrahMos installation was attacked and it was destroyed was false. The destruction of airfields at Srinagar, Jammu, Pathankot, Bhuj, Nalia, etc. was also a false claim. The forward ammunition dump at Chandigarh and Beas are also fit and fine, and we showed you these in the photographs in the morning briefing today. Also, there was a certain different way of miscampaign that Pakistan conducted by its press conferences, which was conducted in a manner which was completely misleading and devoid of facts. Pakistan has been spreading fabricated allegations that the Indian armed forces have targeted mosques. Let us make this very clear here that India is a secular nation and the Indian armed forces are a reflection of our constitutional values. We hold every place of worship of all faiths in the highest regard. Our operations have been aimed exclusively at terrorist camps and facilities being used for anti-India activities. No religious sites, I repeat, no religious sites have been targeted by the Indian Armed Forces. Over the past few days, as we have seen, Pakistan all has suffered very heavy and unsustainable losses after it has given us an unprovoked attack on our installations. It has suffered losses in both land and air. There has been an extensive damage to the crucial Pakistani air bases like Skardu,
Sargodha, Jacobabad, and Bholari. In addition, a loss of AD weapon system and radars made the defense of Pakistani airspace untenable. Across the line of control, extensive and precise damage to military infrastructure and command control centers and logistic installations. In addition to that, two military personnel had led to complete breakdown of its defensive and offensive capability and also Pakistani morale. In conclusion, let me reiterate that whilst we will be adhering to the understanding that has been reached today, that is the Indian Army, the Indian Navy, and the Indian Air Force, we remain fully prepared and ever vigilant and committed to defending the sovereignty and integrity of the motherland. Every misadventure by Pakistan has been met with strength, and every future escalation will invite a decisive response. We remain fully operationally ready to launch whatever operations may be required in defense of the nation. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you. With that, we come to the closure of this press briefing. Thank you very much. जल सेना, वायु सेना पूरी तरह तैयार है और हम भारत की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता जताते हैं और फ्यूचर में अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी एक्शन होता है तो उसका निर्णायक उत्तर दिया जाएगा। अगर फ्यूचर में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पाकिस्तान की तरफ से कहीं भी कोई भी एक्शन लिया जाता है तो उसका निर्णायक जवाब दिया जाएगा। ये बात कमांडोर नायर ने कही है और इसके पहले सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल और S-400 जो हमारा सुदर्शन चक्र है उसको नुकसान पहुंचाने के दावे यानी पाकिस्तान के जो झूठ थे उसका बहुत ताकत के साथ खुलासा किया और हमने ये भारतीय सेना की तरफ से इन रिप्रेजेंटेटिव्स ने कहा कि हमने पाकिस्तान को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। जकोबाबाद हो, सरगोधा हो, उसके एयर बेसेस हैं जो उनको हमने बहुत बुरी तरह क्षतिग्रस्त किया है और हमारे यहाँ किसी भी किस्म का हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस का कोई भी नुकसान नहीं है, कोई भी क्षति भारत में नहीं है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान ने जिस तरह से मस्जिदों या धर्मस्थल जो पाकिस्तान में हैं उनके नुकसान के भारत के मिलिट्री ऑपरेशन में नुकसान का दावा किया था, वो बात भी पूरी तरह झूठ और बेसलेस है। तो और कमांडोर नायर की ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि भारतीय सेना की तीनों इकाइयाँ पूरी तरह से तैयार हैं। आर्मी, नेवल और एयर, हमारी तीनों आर्मी जो हैं ये पूरी तरह से तैयार हैं, थल, जल और वायु सेना, और हम किसी भी उत्तर को देने के लिए, जवाब को देने के लिए तैयार हैं। 24 घंटे भारत की अखंडता और प्रतिबद्धता की रक्षा के लिए हमारे पास पूरी तैयारियां हैं और हमने पाकिस्तान को कोई भी अगर उसने फ्यूचर कोर्स में कोई भी एक्शन लेने की कोशिश की तो उसका बहुत बी-फिटेड उत्तर दिया जाएगा, डिसिसिव रादर आई कैन से। तो हमने नपी तुली और जिम्मेदार कार्रवाई की है, कहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं की है और भारतीय आर्मी भारत की अखंडता और उसकी संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी तरह सन्नद्ध है, तैयार है, सक्षम है, कॉम्पिटेंट है। एक कमेंट सर, मेजर जनरल छाबा सर, आपका एक क्विक कमेंट सर। बनी रही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितनी चीज बोली गई है उसमें बहुत सारी चीजें जो नहीं बोली गई जी। मेरे लिहाज से ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसमें कोई मसाला नहीं है जी। इसमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, इसमें अगर मेरे से आप पूछें कि कुछ बताया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कुछ नहीं बताया। सिर्फ एक चीज बताई गई, एक चीज इम्पोर्टेंट है जो लास्ट में बोली गई है जी, कि ये बोला गया है कि इंडिया इज प्रिपेयर्ड, वेरी ट्रू, Indian armed forces are prepared जी। for anything now, so which implies
कि ये सीज फायर अभी अनाउंस हुआ है, ऑपरेशंस खत्म नहीं हुए। बहुत बहुत Whether इंपॉर्टेंट, operation बिटवीन द लाइंस आपने एकदम राइटली पकड़ी सर बात जी। बाकी सब तो पहले भी बोल चुके हैं कि वो पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन दी, पाकिस्तान ने बोला यहाँ डैमेज हुआ, वहाँ डैमेज हुआ, ये सब चीजें, और हम मॉस्क के ऊपर अटैक नहीं करते, ये सब तो हम बीच में पिछले 3 दिन से बोल ही रहे हैं। पर लास्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किसी ने, किसी भी वक्ता ने कोई सीज फायर के बारे में बात नहीं की, क्या शर्तें हैं, किसी जैसे मैंने एस्टिमेट किया था कि चीफ से क्वेश्चन आंसर का सेशन नहीं होगा, जी। चीफ नहीं बोलेंगे, तीनों चीफ ने नहीं बोला। हाँ, एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, पहले तो सिर्फ व्योमिका सिंह, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी बोलती थी, आज तीसरे अंग नौसेना के भी कमोडोर नायर ज्वाइन कर गए। तो ये तीसरा दिखाता है कि हमारा तीसरा विंग भी हम साथ में हैं। सवाल काफी हैं जिनके आंसर मेरे ख्याल से डीजीएमओ जब 12 तारीख को होगा उसके बाद कुछ आंसर निकलेंगे, और जैसे जैसे इस क्या क्या बातें हुई हैं, और ट्रम्प जी को जानते हुए वो रुकेंगे नहीं एक ट्वीट से, वो अपने ट्वीट्स में काफी कुछ बता देंगे कि क्या हुआ है। ये प्रेजेंट यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की खासियत रही है। तो धीरे धीरे पता चलेगा कि क्या फोर्स लगाई गई है, क्या मुझे तो ये उनके लगता ऊपर है प्रेशर सर, डाले गए। शाबाश सर, मुझे तो ये लगता है कि हमने पाकिस्तान की आज थोड़ी सी अभी कहा है कि नया नया सीज फायर हुआ है, थोड़ी इज्जत उसकी अभी नहीं, उसकी पगड़ी अभी नहीं उछालते हैं। पगड़ी तो उछलेगी जी। अब सवाल, पगड़ी तो उछलेगी जी। अब सवाल सिर्फ ये है कि इसी कई चीजें ऐसी होती हैं जब आप कहते हैं ना अनरिटन गारंटी। सर एक जो इम्पॉर्टेंट बात और आई मेरे जहन में कि ये सेना ने ये भी कुछ नहीं कहा कि वो सिंधु समझौता और ये सब क्या है, क्योंकि अभी तो सिर्फ सीज फायर ही है सर, तो बाकी सारी चीजें तो आपने बिल्कुल कहा कि वो तो अनइंटरप्टेड जारी हैं। जी। अभी और प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा क्लियरली बोला है कि भारत का पानी भारत में रहेगा। जी जी। और IWT के बारे में वर्ल्ड बैंक के जो चीफ हैं वो है तो इंडियन ही, उन्होंने भी बड़ा क्लियरली बोल दिया कि जहां तक वर्ल्ड बैंक का सवाल है हमने समझौता करवा दिया, उसके बाद वो इंडिया पाकिस्तान की बात है। जी। तो अभी कई एज ए सेड इकोनॉमिक मेजर्स हमारे थी, वो जो मैंने पहले भी बात की थी कि नेशनल पावर सिर्फ मिलिट्री की नहीं होते, डिप्लोमेटिक, इंफॉर्मेशनल, इकोनॉमिक भी शामिल होती है मिलिट्री के साथ। तो अगर आप देखो तो ये डिप्लोमेटिक, इंफॉर्मेशनल और इकोनॉमिक, ये 3 मेजर्स जो इंडिया ने लिए थे वो तो अभी भी चल रहे हैं, सिर्फ रुका है तो सिर्फ मिलिट्री। बिल्कुल तो बिल्कुल जी। अभी मिलिट्री ऑपरेशन का सीज फायर हुआ है, अभी बाकी 3 का सीज फायर नहीं हुआ। तो ये क्वेश्चन के आंसर्स आएंगे जैसे बाय एंड बाय, मेरे लिहाज से अगले 1-2 दिन के अंदर भले किसी तरह से आए, किसी सोर्सेस के थ्रू आए, यूएस के थ्रू आए, पर जो आंसर अभी अनआंसर्ड, जो हमें आंसर्स जिन क्वेश्चन के नहीं मिले हैं वो आंसर मिलेंगे हमें। सर जिस न्यूट्रल प्लेस की बात हुई है, मेरे लिहाज से तो बहुत क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत देखिए क्वेश्चन है सर। मुझे पूरा विश्वास है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ये नहीं चाहेंगे कि जैसे हमने 1965 में जो जगह दी थी अब वो हमने वापस कर दी, ताशकंद समझौता कर लिया। 1971 में डिसाइसिव वॉर, 93,000 प्रिजनर्स हमने शिमला समझौता करके वापस चीजें दे दी, वापस कोई आयरन क्लैड गारंटी नहीं ली, और हमने जो जीता, जितनी सैक्रिफाइसेस की उतना हमें वापस नहीं मिला। हम एक्चुअली वॉर तो जीत गए थे पर डिप्लोमेटिक फ्रंट में कंपैरेटिवली हम हार गए। दैट इज व्हाट इंदिरा गांधी को हमेशा ब्लेम किया जाता है। तो मैं ये नहीं, आई एम श्योर प्राइम मिनिस्टर मोदी ये नहीं चाहेंगे कि उनको ये बातें सुनने की हो कि जो चीज हमने मैदान की लड़ाई में जीती वो हमने कूटनीति में हार ली। ये पुराने शातिर कूटनीतिज्ञ हैं और ये लॉस एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल तो सर। अभी आई थिंक आंसर्स आएंगे, आंसर्स आएंगे बिल्कुल। एक अपडेट क्विक दे देता हूं मैं सर, एक क्विक अपडेट देता हूं। तो दोपहर 3:38 के आसपास पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डायरेक्टर ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस डीजीएमओ भारत को फ़ोन किया और ये कहा कि हम सीज फायर चाहते हैं, और सीज फायर के लिए जैसा समझा जाता है, इट इज़ रिलायबली लर्नड, जो अंग्रेज़ी में कहते हैं कि भरोसेमंद सूत्रों से जो जानकारी मिलती है उसके अनुसार इट इज़ रिलायबली लर्नड दैट दिस सीज फायर जो हुआ है ये भारत का अपनी शर्तों पर हुआ है, ऐसा माना जा सकता है। इसके पीछे पर्याप्त कारण भी है, लेकिन जैसा
मेजर जनरल डॉक्टर राजेश छाबा कह रहे थे कि इसके अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके उत्तर हमें मिलेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, 12 मई को दोपहर 12 बजे बातचीत होगी दोनों मुल्कों के डीजीएमओ के बीच। आज तो टेलीफोन पर बात हुई है, अब ये दोनों डीजीएमओ मिलेंगे 12 मई को किसी न्यूट्रल प्लेस पर। अब ये न्यूट्रल प्लेस कौन सा होगा? इट कुड बी सऊदी अरब। क्या ये सऊदी अरब हो सकता है? मे बी ये सऊदी अरेबिया या कतर, ये दो ही आजकल की आज की तारीख में वर्ल्ड फ्लेवर में है जहां तक ये। और सऊदी अरेबिया में होने की संभावना बहुत ज्यादा है क्योंकि सऊदी अरेबिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहा है इस पूरे प्रकरण में। ईरान में होगा नहीं क्योंकि वो यूएस में चाहेगा। सऊदी अरेबिया एक्सेप्टेबल, अभी वहाँ यूक्रेन रशिया की बातचीत भी वहां पे हुई थी, तो सऊदी अरेबिया के चांसेस बहुत ज्यादा। सर 65 में हम ताशकंद गए थे, क्या आपको लगता है अमेरिका का भी चांस है न्यूट्रल प्लेस के लिए? हाँ, अगर प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं, उनकी वाहवाही होना, और वो शौकीन भी हैं इस चीज के, शोमैन है जी, बिजनेसमैन है, शोमैन है जी, पॉसिबिलिटी है। बट न्यूट्रल वर्ड जो यूज किया है उसमें मेरी सऊदी अरेबिया की संभावनाएं ज्यादा। मैं भी सर आपके साथ बैठ, मैं भी सऊदी अरबिया के लिए ज्यादा लगा सकता हूं। अलूने सर से भी एक क्विक कमेंट इस पर सर। तो जी चलिए, अलूने सर अभी हमारे साथ नहीं है, तो ये सऊदी अरब या अमेरिका भी हो सकता है या कतर भी हो सकता है, जो डॉक्टर राजेश छाबा जी से हमारी बात हुई। भोपाल में महिलाओं में बड़ी प्रसन्नता है और उन्होंने क्या कहा है इसको लेकर एक क्विक रिएक्शन लेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे सवाल हैं। हम फिर लौटेंगे गेस्ट के साथ बातचीत के लिए। चलिए मैं वापस लौटता हूं, फिर लौट के बात करूंगा इस पर। सर जो शर्तें हैं एक बार मुझे फिर थोड़ी सी समझाइए कि ये जो सीज फायर की शर्तों पर भारत की सहमति होगी, उस पर एक बार थोड़ी सी और रोशनी डालिए, उसको मैं और आपसे समझना चाहूँगा। आप चूंकि एक बहुत ही सीनियर पोजीशनिंग आपने सेना में वो दायित्व पर आप रहे हैं, मुझे लगता है कि आप उसमें काफ़ी अच्छे से प्रवेश करके सोच सकते हैं और हमें और हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि क्या हो सकता है वो प्लान जिसने भारत को इस पॉइंट ऑफ टाइम पर लाने में मदद की कि हाँ ठीक है, अगर ये है। क्योंकि भारत मैं बिल्कुल नहीं मान सकता कि वो सिर्फ ये कहने से ट्रंप साहब के वो सहमत हो गया कि चलिए साहब, या पाकिस्तान के डीजीएमओ के फोन करने से सहमत हो गया। कहीं तो कुछ ऐसा होगा जिसने भारत को सहमति तक पहुंचाया होगा। जी बिल्कुल सही समझाया आपने। ये जो सीज फायर एक्सेप्ट किया है इंडिया ने, एंड बहुत एब्रप्ट सीज फायर एक्सेप्ट किया है। आप ये समझिए कि इम्पोर्टेंट दो चीजें, मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, मैंने पहले भी आपके शो में ये बोला था कि वाइस जो उनके फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा दो जो डिस्कशंस हुई हैं, दो जो बातें हुई हैं। पहला, उसने जब शहबाज शरीफ के साथ बात की थी, उसी दिन इंडिया के जयशंकर जी से बात की, उसके अगले दिन आसिफ मुनीर से बात की थी, उसके बाद जयशंकर जी से बात की। तो ये जो बातें हुई हैं जयशंकर जी के साथ, ये कन्वे की गई हैं कि क्या शहबाज शरीफ ने बोला, क्या आसिफ मुनीर ने बोला, और क्या आप अपने पॉलिटिकल लीडरशिप को बताइए। तो ये विदाउट गारंटी इंडिया, देखिए जो गारंटी की बात कर रहे हैं, पहली बात तो इंडिया का स्टैंड हमेशा रहा है कि आप स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को रोकिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने पहुंचे हैं सेना अध्यक्ष, तीनों सेना के अध्यक्ष मिलने पहुंचे हैं। सर ये अपडेट और है, सीडीएस भी मिलने के लिए पहले पहुंचे थे, अब तीनों सेना अध्यक्ष भी पहुंचे हैं, तो ये महत्वपूर्ण बात है। जी अपनी बात पूरी करिए सर। हाँ, तो एक तो पहली इंडिया का ये पूरा ऑपरेशन टेररिज्म के बाद हुआ था, पहलगाम अटैक के बाद। दैट मीन्स टेररिज्म के खिलाफ हमें गारंटी चाहिए, और वो गारंटी क्या होगी कि मिलिटेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे आप डिस्ट्रॉय करिए। जो मिलिटेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को आप सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली और मिलिटरीली, वो आपको रोकना पड़ेगा और उसकी कोई ना कोई गारंटी है, कोई ना कोई मॉनिटरिंग होनी चाहिए। तीसरी बात, कोई होता है टेररिज्म के द्वारा, उसके बाद फिर आप हमें मत बोलिएगा कि हम क्या करेंगे। चौथी बात, मेरे हिसाब से इंडिया गारंटी चाहेगा कि पाकिस्तान इस बात का खुलासा करे
कि ये जो पहलगाम का अटैक हुआ था ये किसने किया या कैसे हुआ। डायरेक्टली नाम तो वो बोलेगा नहीं कि मैंने किया था या हमारे किसी ने किया था, बट आई एम श्योर कोई ना कोई कहते हैं ना एक्सपेंडेबल्स होते हैं कुछ, तो ये मिलिटेंट्स उनके लिए एक्सपेंडेबल क्वांटिटी है, कोई लव लॉस नहीं है उनको, कोई प्यार नहीं है। तो अगर वो 4 मिलिटेंट्स को हैंड ओवर भी कर दे तो आई विल नॉट बी वेरी सरप्राइज कि ये वाले 6 जिन्होंने ये एक्शन लिया था ये या नाम दे दे या लोकेशन दे दे कि जहाँ पे आप उनको एलिमिनेट कर सको या उन्हें पकड़ सको। तो और नेक्स्ट जो बात मुझे लग रही है कि आसिफ मुनीर का क्या होगा, आसिफ मुनीर का क्या होगा और शहबाज शरीफ का क्या होगा। भारत किस चीज पर अड़ सकता है क्या सर? क्या आपको लगता है सर कि भारत इस पर अड़ेगा कि ये दोनों लोग नहीं चाहिए, शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ तो छोड़िए, पहले वो कहेगा आसिफ मुनीर बिल्कुल नहीं चाहिए। अड़ने की जरूरत ही नहीं है, वो निकलेंगे जी। आई कैन से विद nearly 100% श्योरिटी कि आसिफ मुनीर विल नॉट रिमेन एज द चीफ। मतलब इसके बाद आसिफ मुनीर अगर टर्की भाग गया तो आई नॉट बी वेरी सरप्राइज, क्योंकि उसे आसिफ मुनीर को रहने नहीं दिया जाना चाहता, बिकॉज उसका डायरेक्ट पहलगाम अटैक में आसिफ मुनीर का हाथ तो क्लियरली एस्टैब्लिश्ड ये हुआ है। तो आसिफ मुनीर नहीं रहेगा। शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर रहें या ना रहें, आसिफ प्राइम मिनिस्टर रहें या ना रहें, ये गारंटी ओपनली तो नहीं होगी, बट अगर प्राइम मिनिस्टर अगर इमरान खान छूट जाते हैं और पीटीआई को पॉलिटिकल पावर में ले आते हैं तो शहबाज शरीफ अगर ये इमरान खान प्रिजन से निकल गए, जो अगर आसिफ मुनीर चले गए तो इमरान खान प्रिजन से निकल जाएंगे, इमरान खान प्रिजन से निकल गए तो शहबाज शरीफ का जाना 100% कंफर्म। और अगर पाकिस्तान को अगर इमरान खान को यूएस डायरेक्टली सपोर्ट दे रहा है, उसका ये भी मतलब है कि इमरान खान से यूएस ने कुछ ना कुछ टैक्स में कुछ ना कुछ आयरन क्लैड उससे एश्योरेंस लिए होंगे कि तू अगर हमने आपको छोड़ा तो आप क्या क्या करेंगे। तो ये क्वेश्चंस हैं, ये कुछ मेरी माइंड में आ रहे हैं, ये कम से कम दैट इज द मिनिमम आई थिंक इंडिया शुड एक्सेप्ट। बिल्कुल सर, एक पाकिस्तान के ब्रेन में अगर हम झांकने की कोशिश करें तो जैसा एक शब्द मेरे दिमाग में आता है जो हम क्राइम रिपोर्टिंग में यूज़ करते हैं, हैबिचुएटेड क्रिमिनल्स, माफ़ कीजिएगा ये तो अगर हम उसके ब्रेन में झांकें तो ये आदतन आतंकी अपराध का एक हैबिचुएटेड कंट्री है, रोग कंट्री है। तो क्या भले ही वो घुटनों पर आज बैठा हुआ है, गिड़गिड़ा रहा है, पता नहीं क्या क्या कहा होगा उसने अमेरिका से, हमारे डीजीएमओ से भी क्या कहा होगा कि साहब आपने तो बैंड बजा दी साहब, कुछ भी नहीं बचा साहब हमारे पास, तो हमारे सारे आपने एयर बेसेस खत्म कर दिए, इतनी बुरा सलूक किया। लेकिन आगे वो क्या सुधरेगा सर, ये बड़ा सवाल है। शरद जी, आप एक तो कवि सम्मेलन के साथ साथ आप एक्टिंग स्कूल भी ज्वाइन कर लीजिए, आप एक्टर बहुत अच्छे बनेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी जी बट हाँ, जो आपने कहा वो मैं बिल्कुल बात से सहमत हूँ कि कुत्ते की दुम है, टेढ़ी से सीधी होनी। बिल्कुल सर, और राजनाथ सिंह का भी काफिला प्रधानमंत्री निवास की तरफ बढ़ रहा है। जी, बात पूरी करिए आप अपनी। जी, नियर इम्पॉसिबिलिटी है कि कुत्ते की पूंछ सीधी हो जी, पर ये है कि अब उसे ये पता चल गया है कि इंडिया जो पहले वाला इंडिया नहीं रहा। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी के समय तीन घटनाएं हुई हैं टेररिज्म वाली। जी, पहली वो थी जब जिसके खिलाफ उरी में जो आर्मी कैंप के ऊपर अटैक हुआ था, उसके खिलाफ में उरी में आर्मी गई। उसके बाद सीआरपीएफ के काफिले के ऊपर जो बॉम्ब अटैक हुआ था, उसके बाद बालाकोट हुआ। तीसरा अभी पहलगाम में ये जो टेररिस्ट एक्टिविटी है उसके ऊपर, उसके बाद ये मेजर ऑपरेशन हुआ। तो पाकिस्तान को एक चीज बड़ी क्लियर है कि चौथी बार हुआ तो फिर ऑल आउट वॉर ही होगा। फिर आप इसके लिए और ये दुनिया को भी पता चल गया कि आप अगली बार भारत को रोक नहीं पाएंगे कि फुल फ्लेज्ड ऑपरेशन के लिए। और पाकिस्तान इकोनॉमिकली अभी संभलेगा, कितना और नीचे जाएगा, वो तो आगे वाला समय बताएगा। क्योंकि हर एक दो नेशन के बीच में इकोनॉमिक स्ट्रेंथ या इकोनॉमिक वीकनेस बहुत बड़ी चीज होती है जी। और इंडिया स्ट्रांग पोजीशन में आज इसलिए है
बिकॉज ऑफ 2 रीजन। पहले रीजन तो ये है कि इंडिया मार्केट है बहुत बड़ा, जी। इंडिया इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा जी। है, एस्टिमेट है कि 4थी पोजीशन पे आ जाएगा। दैट इज द फर्स्ट रीजन। जी। एंड सेकेंड रीजन जो है वो ये है कि आज इंडिया जो क्रिकेट बैट में वो बोला जाता है ना स्वीट स्पॉट, जहाँ पे बॉल लगती है और छक्का स्वीट चली स्पॉट, जाती है, वेरी ट्रू। इंडिया आज की तारीख में स्पॉट पे है। बिकॉज इंडिया, चाइना वांट्स इंडिया जी। एंड अमेरिका वांट्स इंडिया। जी। दोनों चाहते हैं, बिकॉज चाइना चाहता है बिकॉज ऑफ द मार्केट, एंड स्पेशली ट्रम्प आने के बाद जो टेरिफ वॉर शुरू हुआ है उसके कारण जो असर हुआ। और अमेरिका चाहता है बिकॉज अमेरिका अगर एशिया से थोड़ा पीछे हटना चाहता है और अमेरिका के ऊपर फोकस करना चाहता है, तो वो चाहेगा कि चाइना को एक छत्र राज ना मिले एशिया में। तो वो चाहेगा कि कोई ना कोई बैलेंसिंग फैक्टर हो, और वो बैलेंसिंग फैक्टर अगर कोई है तो वो इंडिया है। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल तो, सही आप जी। जो स्वीट इंडिया का है वो बढ़ेगा, वो जी। कम नहीं होगा जैसे जैसे समय बढ़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसा आपने कहा, जैसे वो एक कोल्ड ड्रिंक की लीडिंग जो ब्रांच है उसका एक ऐड है कि दिल मांगे मोर। तो इंडिया इज़ हैविंग सच अ ब्यूटीफुल एंड अ पावरफुल पोजिशनिंग, जियो पॉलिटिकल एंड जियो ग्लोबल, कि जिसमें पूरी दुनिया, ख़ासतौर से जो बड़े मुल्क हैं, जो व्यापारी भी हैं, चाहे वो हथियार के हों या कंज्यूमर प्रोडक्ट के हों, वो कहते हैं इंडिया चाहिए, हमें तो इंडिया चाहिए साहब। क्योंकि इंडिया की कंज्यूमर पावर बहुत स्ट्रेंथ है, हमारा मध्यम वर्ग, हमारा उच्च मध्यम वर्ग और एमर्जिंग जो हमारा समाज से नीचे से आने वाला वर्ग है, ये सब इस समय बहुत ही एस्पिरेशनल हैं, उनकी आकांक्षाएं बहुत ऊपर हैं, क्योंकि वो ऐसे देश में हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करूंगा सर। मतलब मैं सोचता हूं कि ये कमाल है। कमाल इस मायने में है कि जैसा आप बता रहे थे कि पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की, ये 11 साल का जो उनका टेन्योर है, इसमें उसने हमें खरोचा है, हमें बहुत जख्म भी दिया है, ऐसा नहीं है, लेकिन हमने उसको ऐसा पीटा है सर, ऐसा बिफिटेड आंसर दिया है उसको कि वो याद करेगा। और पाकिस्तान को अभी जिस स्थिति में हम ले आए हैं, मेरे ख्याल से ये प्रधानमंत्री, उनकी टीम की एक अप्रतिम सफलता है। और नरेंद्र मोदी जी ने कमाल इस मामले में जो देश को लीड किया है, क्योंकि 71 के बाद तीनों सेनाओं का ज्वाइंट ऑपरेशन, और मेरे ख्याल से 3 दिन भी नहीं हुए और उसको घुटने पे लाके खड़ा कर देना सर। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पहचान की है की लीडरशिप नरेंद्र मोदी जी। उसमें एक चीज सबसे जो आश्चर्यजनक वाली चीज है वो ये है कि एक इस्लामिक नेशन को जी, पाकिस्तान इकलौता एक इस्लामिक नेशन जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, आपने उसी को इस्लामिक नेशंस में अलग थलग कर दिया। जी, आपने जो उसके 6 बैकर्स थे, जो बहुत स्ट्रॉन्ग बैकर्स थे उनके, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया हो या ईरान, ये 2 पुराने बैकर्स थे। अफगानिस्तान जिसको पाकिस्तान ने क्रिएट किया, तालिबान जिसको पावर में लेके आया, बहुत खुश थे कि इंडिया के खिलाफ उसे स्ट्रैटेजिक डेप्थ मिल गई और एक बहुत प्यारा दोस्त हमें मिल गया, हम दोनों मिलकर इंडिया को पीटेंगे। आपने अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ कर दिया, आपने सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान के खिलाफ कर दिया, आपने कतर को पाकिस्तान के खिलाफ कर दिया, आपने पाकिस्तान को इस्लामिक नेशन में ही अलग थलग कर दिया। पाकिस्तान अपने आप को लीडर बनाना चाहता था क्योंकि उसके बाद न्यूक्लियर बॉम्ब था, वो अकेला इस्लामिक देश था जिसके बाद न्यूक्लियर बॉम्ब था। आपने अपनी कूटनीति के कारण उसी को अलग थलग कर दी। आज की तारीख में किसी ने पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया एक्सेप्ट टर्की, और टर्की के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ, सबसे बड़ा लूजर अगर इस पूरे खेल में है तो एक टर्की और एक चाइना, 2। टर्की तो और चाइना। आपने कूटनीति के ऊपर कितनी विक्ट्री की, आपने बिना लड़ाई किए, जिसको सुन त्जू ने कहा था आर्ट ऑफ वॉर, विनिंग अ बैटल विदाउट फाइटिंग, यू हैव एक्चुअली अचीव दैट। आपने बिना आईवी क्रॉस किए आपने एक दुश्मन को नुकसान पहुंचाया और उसे मजबूर किया कि वो बिल्कुल घुटने टेक दे। वही तो लड़ाई की एक्चुअली परिकाष्ठा है। बिल्कुल सर। और जो बात आज सुबह भी एक्सपर्ट्स के साथ हम कर रहे थे कि सबसे अच्छा युद्ध वही है जो पूरी तरह लड़े बिना ही जीत लिया जाए। मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी हमने युद्ध को जो है बिल्कुल जीत लिया है, ख़त्म कर दिया, लेकिन इट इज़ अमाउंट टू विन सर। क्या कहेंगे आप? जी
बिल्कुल 100%, इट इज डेफिनेटली अ विक्ट्री। जी देखिए जी डीजीएमओ का, उनके डीजीएमओ का इंडिया को फोन करना, आपको याद है इनके जो डिप्टी जो मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि हम, अगर इंडिया हमें अप्रोच करेगा तो हम सीज फायर के लिए तैयार हैं। आई थिंक आज सुबह की स्टेटमेंट था उनका। जी जी और कुछ 6 घंटे के बाद उनका डीजीएमओ फोन करके बोलता है कि हम सीज फायर के लिए तैयार हैं। तो एक तरफ तो 6 घंटे पहले आप बोल रहे थे कि इंडिया अगर आएगा तो हम सीज फायर के लिए तैयार हैं, 6 घंटे के बाद आपके डीजीएमओ आपसे बोलता है कि हम सीज फायर के लिए तैयार हैं। तो ये वाली जो चीजें हैं ये, और इंडिया ने क्या बोला? इंडिया ने बोला हमने अभी युद्ध रोका है। जो हमारे स्टेटमेंट अभी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें भी स्टेटमेंट यही दी गई है कि अभी हमने युद्ध रोका है, अभी हम अगर कोई, हमारे फोर्सेस अभी भी तैयार हैं जी फॉर एनी डिसाइसिव एक्शन। बिल्कुल सर, आप बने रहिए। मैं एक क्विक कमेंट और लेता हूं। हमारे साथ कर्नल बीबी वत्स सर भी जुड़ गए हैं। मैं शरद जी, मैं आपसे माफी चाहूंगा। नहीं, मैं समझ, आई कैन अंडरस्टैंड सर, लेकिन मेरी गुजारिश रहेगी कि आगे व्हेनेवर यू हैव अ टाइम, क्योंकि आप एक ऐसे फिनिशर हैं और मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे शो के लिए ज़रूर वक्त रखिएगा, क्योंकि आप जैसे इनलाइटेंड पर्सनैलिटीज जो भारतीय सेना के हैं, वो मैं फिर कहूंगा कि ये एक इतना गौरवशाली अध्याय है कि ऐसा लगता है कि आप लोगों से बातचीत का क्रम चलता ही रहे। बहुत शुक्रिया करूंगा सर आपका, बहुत धन्यवाद। 8 बजे आपको फिर मिलूंगा सर। बिल्कुल सर, मैं भी इंतजार करूंगा। ईगरली आई एम वेटिंग फॉर यू सर। कर्नल बीबी वत्स सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं मैं। पहला ओवरऑल पूरे, जय हिंद सर, जय हिंद सर, जय हिंद, जय भारत की सेना, जय भारत का नेतृत्व। मुझे समझाइए पहला क्विक कमेंट सर आपका। जी सीज फायर के बारे में आप बात कर रहे हैं सर जी। देखिए बड़ा अच्छा लग रहा है, एक पॉजिटिव स्टेप है। और जो पाकिस्तान बड़ी जल्दी समझ गया कि अब उसकी तबाही और डिसइंटीग्रेशन एक रियलिटी में तब्दील होने जा रही है, तो उसने सीज फायर के लिए खुद ही जो है मांग की जी। लेकिन इसके साथ साथ मुझे 2-3 चीजें हम इसके बारे में समझना चाहेंगे जी। देखिए, जब तक पाकिस्तान के पास में न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है जी, तब तक पाकिस्तान सुधरेगा नहीं, क्योंकि बहुत गहरे तक, बहुत गहराई में जी पाकिस्तान की आर्मी के अंदर में और पॉलिटिकल लीडरशिप में तो पहले से ही था जी, एक रेडिकल इस्लामिक सोच पैठ कर गई है। जी 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 और जी न्यूक्लियर बोगी पर बैठकर जी वो कभी भी भारत के साथ में संबंध को बिगाड़ सकता है और पहलगाम जैसी घटना को अंजाम दे सकता है। तो पाकिस्तान पर पूरी तरीके से भरोसा करना मेरे अपने विचार में एक बहुत बड़ी गलती होगी। हालांकि हमने अपनी जो डॉक्ट्रिन है, वॉर डॉक्ट्रिन में जो मेजर चेंज किया है कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसीडर्ड एज ए एक्ट ऑफ वॉर, ये काफी बड़ा पॉजिटिव चेंज है हमारी सोच में, हमारी थिंकिंग में और हमारे वॉर डॉक्ट्रिन में। लेकिन इन सब के बावजूद भी हमें एक बड़ा कॉशियस अप्रोच लेके चलना पड़ेगा जी, क्योंकि पाकिस्तान भी, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि बड़ा अनरिलायबल कंट्री है जिसको हम फेस वैल्यू पर नहीं ले सकते। हो सकता है कि इस प्रेजेंट सिचुएशन में जो हमने उसका गला अच्छी तरीके से पकड़ा हुआ था और खासतौर से कल के जो हमारे अटैक हमने जो एयर बेसिस पर उनके किए हैं और उनको नेस्तानाबूद किया है, तो पाकिस्तान को लगने लगा कि बिना नेवल अटैक के, जो कि मैकेनाइज्ड फॉर्मेशंस के बॉर्डर क्रॉस किए, अगर मेरी ये हालत है तो जाहिर बात है वो समझ गया। और एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव कदम है। वॉर किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता। मेरे विचार में हर चीज का सॉल्यूशन नेगोशिएटिंग टेबल पर होता है, पॉलिटिकल लीडरशिप द्वारा किया जाता है। और मुझे हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन पर पूरा भरोसा है। वो जो भी उन्होंने जो फैसला लिया है वो एक अच्छा फैसला है और बड़ा सोच समझ कर फैसला लिया गया होगा, क्योंकि हमारे देश की जनता उन पर एक अंधविश्वास सा करती है
क्योंकि उनके दिमाग में ये बात बिल्कुल क्लियर है कि मोदी है तो मुमकिन है और मोदी है तो देश सुरक्षित है। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। और ये बात लोग मानते हैं, भारत के निवासी मानते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने इस मामले में क्रेडिबिलिटी का, विश्वसनीयता का एक चेहरा बनकर सामने वो आए हैं, और यही लीडरशिप का काम है। और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि भारत नेतृत्व की इस गौरवशाली परंपरा के साथ आगे बढ़ता रहा है, और उसके पास ऐसे नेतृत्व करता रहे हैं जिन्होंने इस मातृभूमि का सम्मान और यहाँ के संसाधनों से न सिर्फ भारत को आगे बढ़ाया है, बल्कि जब भी दुश्मनों ने आग दिखाने की कोशिश की है, चाहे वो गलवान घाटी हो या फिर अभी जिन भाई साहब ने हिमाकत करने की कोशिश की है, मियाँ पाकिस्तान, उनको घुटने में लाने पर हमने देर नहीं की है। सर, आपने जो बात की, मैं उसको थोड़ा एलोब्रेशन उस पर आपसे चाहूँगा कि 12 मई को दोपहर 12 बजे दोनों मुल्कों के डीजीएमओ फिर किसी न्यूट्रल स्थान पर, किसी तटस्थ, जो भारत और पाकिस्तान नहीं होगा ऐसी जगह वो बैठेंगे। जो अनुमान हमने लगाया है वो सऊदी अरबिया, दुबई हो सकता है, वो स्थान कतर हो सकता है, या अमेरिका भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिका चाहेगा कि वो मीडिएटर है, तो इसका क्रेडिट लेने के लिए वो ये भी कह सकता है कि आप हमारे यहाँ विशेष विमान से सीधे अमेरिका आइए। और हो सकता है कि अमेरिका के विदेश मंत्री या जेडी वेंस, जिनके क्लेम हैं कि उन्होंने बहुत ही वाइटल रोल प्ले किया है, वो खुद उस विमान से भारत आएँ। बहरहाल ये सब तो अनुमान की बातें हैं, लेकिन अगर युद्ध विराम में हमें लगा कि युद्ध विराम की शर्तों के लिए कुछ पाकिस्तान आएँ बाएँ दाएँ कर रहा है, तो क्या आपको ऐसी संभावना भी दिखती है कि भारत, जिस तरह की आज हमने एक बहुत महत्वपूर्ण डिक्लेरेशन किया है कि भारत के विरुद्ध आतंक का कोई भी एक्ट अमाउंट टू वॉर होगा, हम उसको युद्ध मानकर देखेंगे और वैसा ही एक्शन लेंगे, तो इन परिस्थितियों में आप इसकी युद्ध विराम की सफलता को लेकर कितने सहमत हैं, कितनी उम्मीद से देखते हैं इसको? जी, इसमें दो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु आपने रेज किए हैं जी। सबसे पहला तो क्या ये डिसाइड हो गया है, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है जी कि सीज फायर के लास्ट पैराग्राफ में, लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि भारत तीसरे देश के अंदर में नेगोशिएटिंग टेबल पर नहीं बैठेगा। और अगर ये सही है कि भारत तीसरे देश की मध्यस्थता के, सर अभी तक तो ऐसा कुछ ऑफिशियली ऐसा कुछ आया नहीं है, बात यही है कि न्यूट्रल। जी जी जी, क्योंकि जो मेरी जानकारी में है वो ये है कि भारत ने तीसरे देश की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया, और मेरे पर्सनल निजी विचार में ये स्वीकार होना भी नहीं चाहिए। अगर पाकिस्तान को सीज फायर चाहिए तो वो बात करने के लिए इंडिया में आएगा, इंडिया में बैठकर बात करेगा, और फिर हमारी टर्म्स के ऊपर में बात होगी। जहां तक सीज फायर का सवाल है, ये टेम्पररी तौर पर 12 मई तक, जैसा आपने बताया, बिल्कुल सही है कि 12 मई तक इसको किया गया है। उसके बाद में क्या संभावनाएं बनती है, नेगोशिएशन किस प्रकार से होते हैं, जहां तक मैं अपने देश के प्रधानमंत्री और पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री माइंड को समझ पाया हूं, वो आतंकवाद की फैक्ट्री को समूल नाश की गारंटी के बिना इस सीज फायर के लिए, उसको सीज फायर को परमानेंट करने के लिए तैयार नहीं होंगे। जो इम्पोर्टेंट मुद्दे जो सीज फायर नेगोशिएशन में बातचीत होगी, वो सबसे पहले ये है कि अगर आज से 6 महीने बाद या साल भर बाद में पाकिस्तान ने फिर दोबारा पहलगाम जैसा इंसिडेंट कर दिया, तो उस समय कौन सा देश जो है, क्या यूएसए या कोई दूसरा देश इस बात की गारंटी लेगा कि वो पाकिस्तान को सबक सिखाए? नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान के पास में जब तक न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान अपने आप को एक मजबूत देश के तौर पर बताता रहेगा, शो करता रहेगा, और उसकी जो रेडिकल थिंकिंग है उसमें चेंज नहीं आएगी। तो इसलिए जरूरी है कि उसके जो न्यूक्लियर आर्सेनल्स है उसको डिसमेंटल किया जाए और उसको बर्बाद किया जाए, उसको खत्म किया जाए। तीसरा, पाकिस्तान से एक परमानेंट जो है वो एक किस्म से राइटिंग के अंदर में और पूरे वर्ल्ड के सामने इस बात का यकीन लिया जाए कि वो आतंकवाद को नहीं चाहता है और अपने देश से आतंकवाद की जड़ों को खत्म करने के लिए तैयार है। अभी तक वो
बोलता कुछ है, करता कुछ है, लेकिन अब वो पॉलिसी नहीं चलेगी। मैं एक दूसरे चैनल पे शायद बोल रहा था कि देखिए पाकिस्तान को अब अच्छी तरह समझ में आ गया है और आ जाना चाहिए कि भारत में डोजियर प्राइम मिनिस्टर नहीं है भाई। भारत में डोज देने वाला प्राइम मिनिस्टर है अब, और जी। अभी आपको थोड़ा सा डोज मिला है और आप घुटने पर आ गए हैं। जी और जब जी अगर पूरा डोज मिल जाता आपको नेवल से और हमारी थल सेना से, तो आपका रिटर्न तो एक रियलिटी था। बहुत आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि डोजियर वाला प्राइम मिनिस्टर नहीं है, अब डोज देने वाला प्राइम मिनिस्टर है, जो आपको जो है आपकी सच्चाई हकीकत बता देगा। हमारे साथ ग्रुप कमांडर रिटायर्ड सतीश मिश्रा सर भी जुड़ गए हैं। सर, पहले तो एक अच्छी खबर जो आप जानते ही हैं, और ये और अच्छी खबर तब होगी, लेकिन कुछ जो कंसर्न्स हैं, जो बात अभी आपने भी सुनी होगी, कर्नल वत्स कह रहे थे कि वो एक टेढ़ी दुम है पाकिस्तान, और पाकिस्तान की सियासत की चाबी सेना और आईएसआई के पास होती है, और जिन ड्रेडेड आतंकियों को हमने उनके अंजाम तक पहुंचाया है ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए और अपने ऑपरेशंस के ज़रिए, उसके बाद क्या पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो हमसे बात करेगी, लेकिन हमें तो जो बात चाहिए, जो मैसेज चाहिए, वो उन लोगों से चाहिए जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी है ही नहीं, द मोस्ट नटोरियस, जिनको हम कह सकते हैं कि आउटफिट है आतंकी और आईएसआई। जी शरद जी, सबसे पहले तो धन्यवाद चैनल से जोड़ने के लिए आपके सर। और मेरा जो टेक है, पर्सनल व्यूज है, जो सीज फायर की जो अभी न्यूज आई है, और जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा भी, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का स्टेटमेंट आए हैं, और आर्मी ने भी अपना स्टेटमेंट दिया है डीजीएमओ में जी। और ये कहा गया है कि वहाँ के डीजीएमओ ने यहाँ के डीजीएमओ से बात करके और सीज फायर का रिक्वेस्ट किया था जी, जो कि 12 तारीख के 12 बजे तक रहेगा। जी। तो ये पाकिस्तान की तरफ से तो ये एक्सपेक्टेड था कि वो सीज फायर का रिक्वेस्ट भेजेंगे, क्योंकि उनके अभी जो वेयर अबाउट और वेयर विद ऑल हैं, इसमें काफी कमी आई थी, और उन्होंने जितना अटैक किया था वो सब न्यूट्रलाइज हो गया था। तो उनको तो सीज फायर की अभी बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि हमको नहीं थी। हम अभी सस्टेन कर सकते थे और उनको और भी बहुत ज्यादा डैमेज हम कर सकते थे, लेकिन ठीक है, उन्होंने सीज फायर का मैसेज भेजा है। बट मुझे ऐसा लगता है शरद सर कि ये जो सीज फायर है ये बहुत ही टेम्परेरी है। सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान में who is going to take the responsibility for all terrorist activity and ban all the terrorist organizations? सबसे पहली बात यह है कि उनके जो नोन, जिनको हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, पाकिस्तान ने तो उनको कभी भी वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहा ही नहीं। उन्होंने कहा ये तो हमारे बहुत इम्पोर्टेंट बात है सर, बहुत इम्पोर्टेंट बात है जी। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है। कुछ ने तो ये भी कह दिया है कि ये तो हमारे वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारे बच्चों को हमारा हमारे धर्म के बारे में ज्ञान देते हैं, और इनका रोल जो है वो डिफरेंट है, और बेसिकली ये अपने धर्म के लिए काम करते हैं। तो हमारे हिसाब से तो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं, ये तो शुरू से वो कहते आ रहे हैं। इवन आप देखिए, जब यूएन में भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन की बैन की बात आई थी और चाइना ने भी इनका सपोर्ट किया था, इन्होंने कभी भी अपने टेररिस्ट को इंटरनेशनल फोरम में टेररिस्ट इन्होंने डिक्लेयर किया ही नहीं। उसामा बिन लादेन को भी इन्होंने अपने यहाँ शेल्टर दिया था, जबकि अमेरिका इनकी कितनी हेल्प करता था, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे उनकी रसद का सामान हो, चाहे उनके पास जहाज हो। इनके पास जो आज की भी डेट में जो सबसे अच्छा 4th जनरेशन फाइटर है F-16, वो भी अमेरिका ने इनको दिया था। प्लस उन्होंने ट्रेनिंग भी दी थी। पाकिस्तानी पायलट अमेरिका जाके ट्रेनिंग भी लेके आए थे। जब अमेरिका इस हद तक
पाकिस्तान की हेल्प किया था और पाकिस्तान ने ही उसामा बिन लादेन को अपने यहाँ छुपा के रखा था ऐबटाबाद में। तो पाकिस्तान की किसी भी बातों का कोई सच्चाई या भरोसा नहीं किया जा सकता, और अगर हम करेंगे तो हम फिर भुगतेंगे और फिर हमको जो वाली बात दोबारा रिपीट करने की कि आप हमको छेड़ोगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन वो हमको फिर छोड़ेंगे। दूसरी बात फिर मैं ये फिर कहना चाहता हूँ कि ये तो अभी न्यूज स्टार्ट, मैं तो इसको ट्रेलर भी नहीं बोलूंगा कि जो आतंकवादी नए हैं 100, 150, 200, इनके यहाँ तो फैक्ट्री है सर, ब्रेन वॉशिंग की तो फैक्ट्री है। जो 40 से 50% जो इनके अंदर के ट्रेंड यूथ हैं, प्लस इनके 20 से 30% स्लीपिंग सेल जो कि इंडिया में पूरी फैसिलिटीज ले रहे हैं। और आपने इस बीच देखा भी जब हमने 48 आवर्स का नोटिस दिया था कि ऑल पाकिस्तानी नेशनल विल गो बैक, आपको कितनी असलियत हिंदुस्तान में रहते हुए भी हम आंख मूंद के अपना काम कर रहे थे, और हमको ये भी नहीं मालूम था कि हमारे जो एक लेबर में एक जो रहता है उसके जितने बच्चे हैं वो बेसिकली पाकिस्तानी नेशनल के हैं, लेकिन भारत के 6,000 रुपए बच्चा जच्चा अभियान में वो पैसा भी लेके और उन कपोलों को यहाँ पाल रहे हैं जी। तो ये सब जो हरकतें हैं जो ये क्लैंडस्टाइन वे में ये करते आ रहे हैं और हमारी जो आवाम है उसमें ये मिक्सअप हो जाते हैं, तो हम इनके सीज फायर का कितने दिन तक का भरोसा कर सकते हैं? नंबर 1 मेरा तो ये क्वेश्चन है सर। और इस बार जो सीज फायर हुआ है, बॉल अभी हमारे कोर्ट में है सर, हम जहां चाहे वहां प्ले कर सकते हैं। अब इस समय हमारा जो पॉलिटिकल विल है, पॉलिटिकल जो मोटिव है, वो देखते हैं कि हम कितना स्ट्रॉन्ग है। सर आपकी एक बात पे मैं ठिठक गया हूं। मैं कर्नल वत्स का एक फाइनल कमेंट लूंगा उस पर, फिर आपके साथ अगली डिबेट के लिए हम 8 बजे रेडी रहेंगे। कर्नल बीबी वत्स सर ने जो कहा, सतीश मिश्रा सर ने, कि ये टेम्परेरी हो सकता है, माना हमने कि अगर ये टेम्परेरी है और भारत नहीं मानता है कि नहीं, हमें भरोसा नहीं है, सीज फायर हमने कर दिया लेकिन ये शर्तें पाकिस्तान पूरी करेगा, जिसमें बहुत संदेह है। और दूसरा, जो रक्त बीज नाम के असुर की कहानी हमारे यहाँ सनातन में है कि जिसका एक खून की एक बूंद गिरती थी तो एक और रक्त बीज पैदा होता था। हमने 100 आतंकी मारे हैं, उनके नाते रिश्तेदार, उनके फैंस जो हैं, वो सब रक्त बीज हैं सर, वो नए तैयार होंगे। फैक्ट्री है, बिल्कुल सतीश मिश्रा सर ने सही कहा है। तो क्या ये जो मीडिएटर साहब हैं अमेरिका, अब उनकी जवाबदारी है कि मीडिएशन तो आपने किया है, तो अगर फ्यूचर में भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन लेता है, उसके टेररिस्ट के खिलाफ कोई एक्शन लेता है, तो क्या अब अमेरिका से हम और इंटेंसिव मदद की अपेक्षा कर सकते हैं? सवाल मेरे से है सर, आपसे ही है सर। जी आपने सही कहा। 12 मई तक तो जो हमारा ये अभी सीज फायर के बारे में जो डिक्लेयर हुआ है वो डेफिनेटली टेम्परेरी है, बिकॉज जब तक सीज फायर की जो शर्तें हैं, जो डिटेल में जानकारी हमारे को नहीं मिलेगी, तब तक हम उसके बारे में कुछ आगे नहीं कह सकते हैं। मेरा अपना मानना है कि मोदी जी आतंक की फैक्ट्री को बंद कराए बिना, या और जो मध्यस्थ देश है, अभी तो यूएसए अपने आप को क्लेम कर रहा है, अगर मध्यस्थ देश है तो वो क्या गारंटी लेगा, इस बात को भी अपने को देखना पड़ेगा। आज की तारीख में हमने पाकिस्तान की गर्दन को अपने पंजे में पकड़ा हुआ है। पाकिस्तान हर तरीके से, चाहे वो इकोनॉमिक है, चाहे डिप्लोमेटिक है, पॉलिटिकली उसके अंदर में ग्रे युद्ध की स्थिति बनी हुई है। बलूचिस्तान आर्मी उसको जो है पूरी तरह से घेरे हुई है। आपको शायद मालूम होगा कि क्वेटा के अंदर में वहां से फौज ना वेस्टर्न बॉर्डर पर जा पा रही है, ना ईस्टर्न बॉर्डर पर जा पा रही है। वहां पर 2 डिविजन उन्होंने रोक के रखी हुई हैं। जी। क्यों?
क्योंकि जैसे ही अगर वहां से वो मूव करती है पाकिस्तान फौज वहां से, तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का क्वेटा पे कब्जा हो जाएगा। जी। और इंसिडेंटली क्वेटा के में ये डिविजन के अलावा क्वेटा के अंदर में पाकिस्तान का स्टाफ कॉलेज भी है, जी हाँ, जो एक बड़ी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है। जी। तो पाकिस्तान की हालत हर हिसाब से जो है पॉलिटिकली, मिलिट्री, डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमी में तो बहुत ही बुरा हाल है। अब जो IMF ने लोन दिया था उनको $1 बिलियन का, जब अमेरिका ने उस लोन के बारे में पाकिस्तान से बात करी और उसको डिले करने का बात हुई है, तब ये भी एक कारण हो सकता है कि पाकिस्तान घुटनों पर आया है इस सीज फायर के लिए। तो पहले देखना पड़ेगा, पहले लेट द थिंग्स अनफोल्ड सर, बिकॉज अभी बड़ा प्राइमरी स्टेज पर है। धीरे धीरे पता लगेगा। ये डिप्लोमेसी है, बड़ा स्लो काम करती है पर स्टडी काम करती है। देखते हैं किन शर्तों पर ये हुआ है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो देश की 140 करोड़ जनता हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर से जो आशाएं लगाए बैठी है, वो उन पर खरे उतरेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आप दोनों का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कर्नल 8 बजे मिल रहे हैं? बिल्कुल मिल रहे हैं सर, आप लोगों के बिना तो कैसे आगे बढ़ेंगे। और बहुत शुक्रिया करूंगा ग्रुप कमांडर सतीश मिश्रा जी का, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो अब तक का एक अपडेट देकर मैं टेम्परेली थोड़ी देर के लिए और तैयारी के लिए थोड़ी देर के लिए हटूंगा, लेकिन हमारे साथ ही लगातार अपडेट्स के साथ रहेंगे। तो अपडेट दे देते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर, ये सहमति युद्ध विराम की बन गई है और पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है। पाकिस्तान के DGMO ने, यानी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने, भारत के DGMO डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन को फोन करके 3